ہماری کون سنے، ہم کس کو یہاں رہبر سمجھے، سب لوگوں کی آنکھوں پر پٹی، کسے اپنا علم ہم دکھلائیں، قاتل کو جو قاتل ہم کہہ دے، الزام یہ اپنے سر لیں گے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، اس ملک کے ہم سب واسی ہیں، گھس پیٹھی بتایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہم سب پر الزام لگایا جاتا ہے، دن رات ستاتے ہیں اب ہم، یہ چھین بھی ہم سے گھر لیں گے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، نفرت کی کمانیں جب بھی اٹھی، ہر تیر ہمیں پر چھوڑا گیا، ہم لوگوں کی مسجد توڑی گئی، ہم لوگوں کے گھر کو لوٹا گیا، آواز اٹھائیں گے گر ہم، دامن کو لہو سے بھر لیں گے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، دنیا کے گوشے گوشے میں ہم لوگ ستائے جاتے ہیں، غزہ کے زندہ لوگوں پر بارود بچھائے جاتے ہیں، تم لوگ خوشی سے جھومو، ہم آنکھ میں پانی بھر لیں گے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ اچھے سے، آزادی منائے ہم کیسے، تم لوگ مناؤ کر رہے ہیں کہ بہار والے ہے کچھ، جو ہر اسٹیٹ والے بہار والوں کو گالی دے رہے تھے، آج ان کے تعریف میں لگے ہوئے ہیں، آج ان کے تعریف کر کر کے تھک نہیں رہے، بہار کا آندولن قیامت تک یاد رکھنے والے آندولن بنایا، نوجوان دوست لوگ نے اپنے حق کی لڑائی کے لیے، جہاں دلی میں نوجوان کو پولیس والے نے، پولیس کی وجہ سے دلی کے جنتر منتر میں پولیس کے ڈنڈے کی وجہ سے نوجوان پیچھے بھاگ رہے تھے، پانی کی وجہ سے نوجوان پیچھے بھاگ رہے تھے، وہیں بہار والوں نے، بہار کے نوجوان نے، بہار کے پولیس نے بہار کے نوجوانوں کی ڈر کی وجہ سے پیچھے بھاگنا پڑا، اور پانی کی فوارہ میں اس میں مزہ سے ڈانس کرنے لگے، تو یہ بہار ہے بھائی، یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، ہر چیز بہار والا ہر چیز ممکن کر دیتا ہے، تو اس لیے جو اسٹیٹ میں بہار والوں کو گالی دینے کا کام کرتا تھا، آج وہ اسٹیٹ والوں نے بہار کے نوجوان اور آندولن کا تعریف کرنے پر مجبور، موبائل کرنے، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، جو جنتر منتر میں ہمارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، آج ہم اور آپ کو ٹائم نہیں ہے ان کے ساتھ دینے کا، ان کے سپورٹ کرنے کا، کیونکہ آج اگر ہمارے ہاتھ سے حق کی لڑائی اگر نہیں ملے گی تو آنے والا نسل ہم کو اور آپ کو گالی دیں گے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، آنے والا جو ہمارے نسل ہے، وہ جنتر منتر میں نہ ہندو مسلم کی لڑائی ہے، صرف حق کی لڑائی ہے، وہاں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ ہے، ہر
धर्म जाति के आदमी एक साथ मिलकर सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला नस्ल के लिए जो हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत पहले था, अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हर किसी को बांट दिया है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि फेसबुक और यूट्यूब को हटकर जंतर मंतर का सपोर्ट करें और बड़ों के साथ दें जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ दें। क्योंकि आज हम नहीं देंगे तो कायर कहलाएंगे। हक की लड़ाई में अगर हमें और आपको मौत आ जाए तो शहीद कहलाएंगे। आने वाला नस्ल हमारा नाम हमेशा याद रखे। इसलिए आज के दौर में पढ़ाई कितना ज़रूरी है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, वो दुनियावी हो या दीन हो। हर आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो बातचीत करने का तमीज़ सिखाता है, छोटे बड़े का लिहाज बताता है। इसलिए हम सब लोग कोशिश करें कि अपने अपने गांव, स्टेट में, गांव समाज में अगर पढ़ाई और एजुकेशन की अगर कहीं कमी है तो भी हमारे बिहार में है। पैसे की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसा कोई इंतज़ाम ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई की बहुत कमी है हमारे बिहार के अंदर। सिर्फ हमारे बिहार वाले कोई चीज़ में हारता नहीं है। तो इसलिए तो हर जगह मशहूर है कि एक बिहारी 100 पर भारी। इसलिए कोशिश करें, जो अभी हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, बच्चे बहन बेटी सब मिलकर जो हक सरकार से हक मांग रहे हैं, उसमें कामयाबी और हम और आप सब साथ दें, जो जल्दी से जल्दी सरकार हम लोग का मांग को पूरा करे। क्योंकि हमारी मस्जिदें भी तोड़ी जा रही है, हमारे मदरसे के ऊपर बुलडोज़र चला जा रहे हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि वहाँ जंतर मंतर और बड़ों के साथ दें और बच्चों लोग के साथ दें और उनके साथ खड़े हुए। मौत तो आज नहीं तो कल तो आना ही है। अगर हक मांगने में अगर मौत आ जाए, ये शहीद कहलाता है। क्योंकि आने वाला नस्ल के लिए हम भी कुछ करके जाएं, जो आने वाला नस्ल हमारा नाम याद करें कि हमारे लिए कोई देश में लड़ के अपने जान को गंवाया है। इसलिए आज के दौर में पढ़ाई कितना ज़रूरी है। इसलिए आज के दौर में पढ़ाई कितना ज़रूरी है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, वो दुनियावी हो या दीन हो। इसलिए आज के दौर में पढ़ाई कितना ज़रूरी है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, वो दुनियावी हो या दीन हो। हर आदमी को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो बातचीत बरकातहू। देखें भाई, 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर में किस तरह नौजवान बहन भाई दोस्त लोग को कितना पुलिस वाला ने लाठी चलाए हैं। तो अपने हक की लड़ाई करने के लिए आदमी मार भी खाना पड़ता है। अपने हक मांगने पर आदमी मार भी खाना पड़ता है, खून भी बहाना पड़ता है। फिर भी सरकार को बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही है। कितना सारे बच्चे हैं, भाई है, बहन लोग हैं, सब भूख हड़ताल करके अपने हक की तलाश में बैठे हुए हैं। हमें और आपको चाहिए कि वहाँ जाके सपोर्ट करें और उन लोग को साथ दें। बरकातहू। देखें भाई, 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर में किस तरह नौजवान बहन भाई दोस्त लोग को कितना पुलिस वाला ने लाठी चलाए हैं। तो अपने हक की लड़ाई करने के लिए आदमी मार भी खाना पड़ता है। अपने हक मांगने पर आदमी मार भी खाना पड़ता है, खून भी बहाना पड़ता है। फिर भी सरकार को बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही है। कितना सारे बच्चे हैं, भाई है,
बहन लोग हैं, सब भूख हड़ताल करके अपने हक की तलाश में बैठे हुए हैं। हमें और आपको चाहिए कि वहाँ जाके सपोर्ट करें और उन लोग को साथ दें और खाना पीना का इंतज़ाम करें। देखिए भाई, बहुत सारे आदमी हक मांगने के लिए जब भूख, वो हमारे और आपके आने वाले नस्लों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। जो वहाँ पे हैं, बहन भी है, भाई भी है, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, बच्चे भी हैं, हर कोई आने वाले नस्ल के लिए वो हक मांग रहे हैं सरकार से। सिर्फ वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो कोई भी धर्म के बच्चे हो, आने वाला नस्ल हो, उनके लिए ज़िंदगी का सवाल है। तो इसलिए उनके हक के इंतज़ाम, हक मांगने के लिए लाठी भी खा रहे हैं, प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं, मगर सरकार के सामने झुकते नहीं हैं। सब पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है। जो जाहिल है वो कहीं और बैठे हुए हैं।